Dear students, today we will see some remaining terms that are agricultural income, casual income and total taxable income. So let's start with agricultural income. Agricultural income is defined under section 2(1)(a), means section 2 subsection 1 and it's again subsection A, 2(1)(a). Okay, agricultural income is exempted from the taxation under section 10(1), that is section 10 and its subsection 1. See here, agricultural income, its definition is given under section 2(1)(a). Okay, and its exemption, agricultural income, its exemption is given under section 10(1), that is section 10 and its subsection 1. Okay, the agricultural income is totally exempted from the taxation. Agricultural income is totally exempted from the taxation, means from income tax. Okay, no income tax is levied or charged on agricultural income. Okay, now we have seen that agricultural income is exempted from taxation or charging of income tax. Okay, however, agricultural income is considered as a factor for deciding tax on non-agricultural income. On which income? Non-agricultural income, means that is the income which is derived from non-agricultural sources. Okay, if an assessee's total income, assessee means taxpayer, income taxpayer. Okay, assessees, if an assessee's total income exceeds minimum taxable limit, say if an assessee's total income exceeds minimum taxable limit and agricultural income exceed rupees 5,000, agricultural income exceeds rupees 5,000. Okay, means say जो टैक्सपेयर है, जो इनकम टैक्सपेयर है, in case of if his or her age is below 60 years, 60 years, okay, then the minimum taxable limit, that is 2.5 lakhs, 2.5 lakhs means 2,50,000. Okay, 2,50,000. And if the assessees, that is taxpayers, age is above 60 years, in this case minimum taxable limit is 3 lakhs rupees. Minimum taxable limit 3 lakhs rupees. Okay, and the agricultural income of that assessee, of that income taxpayer exceeds rupees 5,000. If it crosses rupees 5,000, then some charges or some taxes are levied on that assessee. Okay, means उसके ऊपर कुछ अलग से चार्जेस लगेंगे. उसका जो इनकम है, ओरिजिनल जो इनकम है, जो नॉन एग्रीकल्चरल के सोर्स में है, उसके ऊपर कुछ अलग से चार्जेस लगेंगे. ओके, से हियर एग्रीकल्चरल इनकम, इट इज टोटली एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन. ओके, बट टोटली एग्जिम्प्टेड है, बट कुछ फैक्टर, मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर, इट प्लेज इट्स रोल, एग्रीकल्चरल इनकम प्लेज इट्स रोल एज अ डिसाइडिंग फैक्टर. ओके, जो टोटल मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कितनी है इन इंडिया, in context of India. Okay, minimum taxable limit 2.50 lakhs for which age group? Okay, जो भी टैक्स पेयर है बिलो 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, अगर वो जो टैक्स पेयर है, जो असेसी है, वो 60 ईयर्स के बिलो है, 60 साल के बिलो है, then minimum taxable limit is
2.5 lakhs. Okay, means 2,50,000. Okay, and if that person, that assessee or that taxpayer is above 60 years of his or her age, in this case 3 lakhs rupees, minimum taxable limit will be 3 lakhs rupees. Okay, and agricultural income, suppose let's take an example. सपोज उसका जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसका इनकम 5 लाख रुपीज़ है. ओके, उसका इनकम 5 लाख रुपीज़ है एंड ही इज बिलो 60 ईयर्स ऑफ हिज एज. ओके, 60 साल के नीचे में है. सपोज कंसिडर करो ही इज ऑफ 55 ईयर्स ओल्ड. ओके, नाउ उसका जो 5 लाख रुपीज़ है, जैसे मैंने जो लास्ट एग्जांपल लास्ट लेक्चर में बताया था, उसका चार्जेबल इनकम कितना है, टैक्सेबल इनकम, दैट विल बी 5 लैक्स माइनस 2.5 लैक्स. मीन्स जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट दैट इज 2.5 लैक्स. ओके, मीन्स 2,50,000. 5 लाख में से 2.5 लाख गए. ओके, रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 2.5 लाख, 2.5 लैक्स. ओके, अभी उस पर्सन का मीन्स सपोज उसका बिजनेस है, वहां से उसको इनकम कितना मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है. ओके, और अभी उसका एग्रीकल्चर भी है, मीन्स उसकी खेती भी है. ओके, वहां से उसकी अज्यूम करो उसकी खेती है और उसमें उसने कपास लगाई है. ओके, अभी कपास जो कॉटन है, कॉटन उसने मार्केट में बेचा, उसको जो मतलब जो नेट प्रॉफिट है कपास बेचने के बाद, वो कॉटन बेचने के बाद जो उसके एग्रीकल्चर से मिला है, फार्म से मिला है, उसका जो नेट प्रॉफिट है इट इज अबव 5,000 रुपीज. मतलब उसका जो जितनी भी अमाउंट मिली है उसमें से उसके पूरे खर्चे जाके, एक्सपेंसेस लेस होके उसका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 5,000 रुपीज. अभी उसको जो 2.5 लैक्स है, जो 2.5 लैक्स जो रिमेनिंग अमाउंट थी, टोटल इनकम माइनस मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट. ओके, मिनिमम टैक्सेबल इनकम जो जितना भी है 2.5 लैक्स. अभी ये जो 2.5 लैक्स है, 2.5 लैक्स है, तो उसके ऊपर जो 5,000 रुपीज है वो मतलब उसका जो स्लैब है वो कौन से स्लैब में बैठेगा, ये इट विल बी डिसाइडेड. ओके, मीन्स जो एग्रीकल्चरल इनकम है दैट इज डिसाइडिंग फैक्टर. अभी ये कैसा डिसाइड करता है, वी विल सी इन अपकमिंग लेक्चर्स. ओके, बस अभी आप इतना समझ लो कि एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जिम्प्टेड. एग्रीकल्चरल इनकम इज totally exempted from the taxation, from the charging of tax. Okay, and what is minimum taxable amount, that is 2.5 lakhs, means 2.5 लाख. ओके, और किसके लिए, जो 60 साल, जो जिस असेसी के 60 साल होने के हैं उसके लिए कितनी है मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट, दैट इज 2.5 लाख. 2.5 लैक्स मीन्स 2.5 लाख. और जो 60 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स है, फॉर दैट पर्सन इट इज 3 लैक्स, 3 लाख रुपए. ओके, नाउ वी हैव सीन दैट एग्रीकल्चरल इनकम इज exempted from the tax, but there are some essential conditions that are to be fulfilled to be considered as agricultural income. So let us see which are those. So first one is income is derived from land. Income is derived from land. Now in the eye of law, what is meant by land? Let's see. Land includes benefits to arise out of the land and things attached to the earth or permanently fastened
to any things attached to the earth. Means land includes which land? Land includes benefits to arise out of the land and things attached to the earth or permanently fastened to any things attached to the earth. And of course it is immovable. Of course land is immovable. लैंड इमूवेबल रहती है ना. ओके, उसको लैंड को मूव कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स नॉट. ओके, लैंड इज इमूवेबल. सो जो लैंड है उससे जो भी इनकम आता है, जैसे आपको पता है जो एग्रीकल्चरल लैंड है उससे जो भी इनकम आता है, बट दैट इज मतलब अटैच टू द अर्थ. अटैच टू द अर्थ. जो एग्रीकल्चरल लैंड है दैट इज अटैच टू द अर्थ एंड इट इज इमूवेबल. इट इज इमूवेबल. ओके, उसको एग्रीकल्चरल लैंड है, सपोज कोई भी लैंड, उसको मैं कहीं और शिफ्ट कर सकता हूं क्या? ऑब्वियसली नॉट. इट इज इमूवेबल. ओके, एंड मतलब उस लैंड से सपोज जैसे अभी जो एग्जांपल दिया था कि लैंड की कपास की खेती है, कॉटन की खेती है. ओके, अभी उससे जो भी वो लैंड से जो भी इनकम मिलेगा, उस लैंड से जो भी इनकम मिलेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, और परमानेंटली फास्टन्ड टू एनी थिंग्स अटैच टू द अर्थ. जैसे वहां पर उस लैंड में, वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस लैंड में टीक टिम्बर्स लगे हैं, मीन्स जो साग के पेड़ लगे हैं. टीक के ट्रीज मीन्स पेड़. ओके, टीक ट्रीज वहां पर लगे. अभी बहुत मतलब आफ्टर 15 ईयर्स वो सेलेबल हो गए, वो मार्केट में बेचने लायक हो गए. ओके, आफ्टर 15 ईयर्स जनरली 12 टू 13 टू 15 ईयर्स में उसको बेचा जाता है. ओके, जो टीक ट्रीज है, साग के जो पेड़ रहते हैं वहां पर है, दैट इज परमानेंटली फास्टेड टू दैट अर्थ, टू दैट लैंड. ओके, सो उससे जो भी इनकम मिलेगा, उस जो टीक बेचने के बाद जो भी इनकम मिलेगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. दैट आल्सो जो वो साग के पेड़ बेचने के बाद जो भी इनकम मिलेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, बट लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. एक पोल्ट्री फार्म है, वहां पर पोल्ट्री फार्म है. ओके, उसी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पे पोल्ट्री फार्म है. उस पोल्ट्री फार्म से जो भी इनकम मिलेगा उस पर्सन को, किस पर्सन को? जो वो खुद वहां पर कर रहा है, उस पर्सन को जो भी इनकम मिलेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. बट उसमें से अगर वो जो इनकम मिला है उसमें से अगर वो अपने फ्रेंड को, किसी दूसरे फ्रेंड को शेयर करता है, मीन्स जो भी प्रॉफिट मिला उसको अगर 50% अगर किसी दूसरे को देता है, सपोज 10 लाख प्रॉफिट हुआ, उसमें से 5 लाख उसने अपने फ्रेंड को दिए, तो वो जो फ्रेंड के 5 लाख है, 5 लाख रुपए, दैट वुड बी अंडर टैक्सेशन. वो टैक्सेबल रहेंगे. ओके, मीन्स लैंड जो है, लैंड से जो भी, एग्रीकल्चरल लैंड से जो भी इनकम मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट, दैट इज द लैंड दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड, इट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया. इट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, इन द जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो जिसका सोर्स बता के एग्रीकल्चरल इनकम का
सोर्स बता के जो एग्जिम्पशन मिल रहा है, वो जो लैंड है दैट मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। किसी अदर कंट्री में वो लैंड रहेगी तो, और वहां से जो इनकम मिलेगा दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, मीन्स एग्रीकल्चरल इनकम तो है वो, बट इट वुड नॉट बी एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। अगर सपोज मेरी लैंड है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज मेरी लैंड पाकिस्तान में है, ओके, या तो किसी की भी है, पाकिस्तान में है, ओके। अभी वहां पर जो मुझे खेती से, सपोज वहां पर भी उस खेती में भी कॉटन लगाया है, वो कॉटन मार्केट में सोल्ड आउट होने के बाद जो भी इनकम मिलेगा, ओके, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज दैट लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया एंड हेंस वो जो वहां से जो खेती के, वहां पर खेती से जो भी मुझे इनकम मिलेगा दैट विल नॉट बी एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, उसको एग्जिम्प्ट नहीं किया जाएगा। ओके, मीन्स सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जिम्पशन अंडर एग्रीकल्चरल इनकम, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। The land must be situated in India. Third requirement is land is being used for agricultural purposes. Land is being used for agricultural purposes. Now, suppose agricultural land है वहां पर, okay, in India, anywhere, just suppose it is situated in चंद्रपुर के किसी भी एरिया में मीन्स एग्रीकल्चर लैंड, जैसे दाताला में है, ओके। अभी वहां पर अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, बट वहां पर अगर कोई वो जो लैंड ओनर है, एग्रीकल्चरल लैंड जिसकी वो लैंड ओनर, उसका कोई कोल डेपो है, मीन्स दैट लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग कोल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एट अनदर प्लेसेस। whether that income जो भी डिराइव होगा, whether it would be considered as agricultural income, वो लैंड पे ही है, एग्रीकल्चरल लैंड है, बट उसका यूज किस पर्पज के लिए हो रहा है, वो स्टोरिंग फॉर कोल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, मीन्स सपोज किसी बड़े गोडाउन स्टोर से या गोडाउन से, या तो WCL के किसी आउटलेट बोलते, पता नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बोलते, वहां से उस जो एग्रीकल्चरल लैंड है जो अभी इन क्वेश्चन है, तो वहां पर आ रहा है, वहां पर स्टोर हो रहा है वो कोल, और वहां से फिर वो जो कोल है वहां से फिर दूसरे छोटे जो सपोज किसी कोई कंपनी है, उसका पावर प्लांट है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो क्वेश्चन अराइजेस, अभी जो उस जो लैंड ओनर है उसी का कोल डेपो है, वो उसको जो इनकम मिलेगा वेदर दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम, ऑफ कोर्स नॉट, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज the land must be being used for agricultural purposes only. In that case only that income will be considered as agricultural income. अगर वो जो लैंड है, लैंड इन क्वेश्चन, वो जो लैंड है वो किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज हो रही है, इन दैट केस that income which is derived from that land would not be considered as agricultural income. Okay, and the last one is that assessee has interest in that land. Assessee has interest in that land means जो assessee है, जो taxpayer है, he should have some interest in that land.
नहीं तो कोई भी मेरा जो इनकम है, सपोज मेरा मुझे कुछ इनकम मिला है दूसरे सोर्सेज से और मैं किसी के भी दूसरे की खेती के नाम से उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ क्या, उसको शो कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली नॉट। ओके, बिकॉज मेरा उसमें कुछ उस लैंड में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, मीन्स ना मेरा उसका जो 7/12 रहता है, आपको पता होगा, जो रिकॉर्ड रहता है। ओके, एग्रीकल्चरल लैंड का जो रिकॉर्ड कहाँ पर मेंटेन होता है, उसको वो जो डॉक्यूमेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज 7/12, 7/12। वहाँ पर उसका पूरा जो एकरेज रहता है, किसके नाम पे है, वो जो फार्म है, वो जो लैंड है वो किसके नाम पे है, उसका एकरेज कितना है, उसका पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहाँ पर मेंशन रहता है। ओके, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज 7/12। इन जनरल 7/12 बोलते हैं उसको, 7/12। ओके, सो उस पर मेरा नाम नहीं है, वो जो लैंड है उस पर मेरा नाम नहीं है, या तो मैं उसका कुछ ये नहीं हूँ, मतलब कोई मेरे फादर की लैंड नहीं है। इन दिस केस आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट लैंड, एंड मैं जो भी मेरा इनकम है उसके नाम पे, वो जो लैंड ओनर है उसके नाम पे नहीं दिखा सकता, या तो उस लैंड के नाम पे नहीं दिखा सकता। ओके, मीन्स दीज आर 4 रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी फुलफिल्ड टू कंसिडर दैट इनकम एज एन एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, ये चारों जो रिक्वायरमेंट्स है दैट शुड बी फुलफिल्ड, नहीं तो किसी को भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहा जा सकता। ओके, फॉर कंसिडरिंग दैट एज एन एग्रीकल्चरल इनकम, these 4 requirements, that is लैंड, जो मतलब उस लैंड से इनकम आना चाहिए। ओके, दैट लैंड, वो जो रिक्वायरमेंट्स है, ओके, वो लैंड जो है वो दैट मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, एंड वो जो लैंड है दैट मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस ओनली, एंड in that land the assessee has an interest, should has an interest। वो जो assessee है उसको उस लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, उसका कुछ वहां पर रोल होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, रोल होना चाहिए, नहीं तो किसी के कोई भी लैंड है उसके नाम पे मैं अपना इनकम शो नहीं कर पाऊंगा। नाउ इन शॉर्ट, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड by processing to farm produce that is fit for marketing and also from farmhouse is agricultural income. Okay, means in simple words, खेती से जो भी इनकम आएगा, जो इंडिया में खेती है और जो रियल ओनर है उसके लिए वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम इन सिंपल वर्ड्स। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज कैजुअल इनकम। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, दैट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम इज दैट इनकम द रिसिप्ट ऑफ विच और इनकमिंग ऑफ विच is totally accidental, it is not predetermined, and without any stipulation or without any expectation. Okay, see, casual income, it is not predetermined। जैसे सैलरी है, आपको मंथ एंड के बाद सैलरी मिलनी है। ओके, सैलरी मिल ही जाएगी। ओके, दैट इज नॉट कैजुअल इनकम। Casual income is that income, the receipt of or say the incoming or getting, मिलना, उसका जो इनकम है वो मिलना। ओके, of which is totally accidental, that casual income is totally accidental and without any stipulation, means it is not predetermined or with some expectation, and that's why
इट इज कंसिडर्ड एज वाइंडफॉल. वाइंडफॉल मीन्स जैसे हवा का झोंका आया और गिर के तुम्हारे पास वो पैसे तुम्हारे पास गिरे हैं और तुमने उठा लिए. वाइंडफॉल हवा के झोंके से तुम्हें भगवान ने, गॉड ने, खुदा ने तुमको दे दी है. ओके, दैट इज कैजुअल इनकम. ओके, एंड नॉट टेकिंग मच एफर्ट्स आल्सो. उसका ये भी एक एस्पेक्ट है कि बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़े. दैट इज कैजुअल इनकम. कैजुअल इनकम का एग्जाम्पल लॉटरी, अगेन हॉर्स रेस, बेटिंग्स, सम बेटिंग्स. ओके, इवन गैम्बलिंग. उसका जो गैम्बलिंग, वहां से जो भी रिसिप्ट है, वहां से जो पेमेंट मिलेगा, दैट इज नॉट फ्री डिटरमाइंड. लॉटरी भले ही आपने उस लॉटरी का टिकट परचेस किया है, बट इट इज नॉट फ्री डिटरमाइंड. इट इज टोटली लक फैक्टर कि आपको लगेगी नहीं लगेगी तो अच्छी बात है. ओके, दैट विल बी गुड लक टू यू, बट इट इज नॉट फ्री डिटरमाइंड एंड दिस इज एक्सीडेंटल. अगर आपको लॉटरी लग गई, दैट विल बी एक्सीडेंटल. ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज वाइंडफॉल, दिस accidental income, and without any stipulation, without any expectation, this income arrives to you. Okay, so casual income does not includes casual income जो है, it does not includes. क्या इंक्लूड नहीं होगा अभी इसमें? जैसे कैपिटल गेन्स मीन्स income from sale of property. Income from capital gains. Capital gain means income which is derived from sale of property. Or the income which is derived from an investment. जैसे capital gains means जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक मेरा घर है बहुत बड़ा. ओके, दैट इज माय प्रॉपर्टी. मैं उसको किसी दूसरे को सेल कर देता हूं. तो वहां से जो सेल होने के बाद जो भी इनकम आएगा, मुझे जो भी पैसे मिलेंगे, दैट इज कैपिटल गेन्स. और इफन जैसे आपका सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में, वहां पर आपने 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए सेविंग किए, डिपॉजिट किए. ओके, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, बैंक्स इंटरेस्ट देती है. जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी उनका डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा. कुछ जो भी 2000 रुपीज, 3000 रुपीज. ओके, वो भी कैपिटल गेन्स है. ओके, रेट जो इंटरेस्ट मिलेगा. नाउ रिसिप्ट्स फ्रॉम, जो कंसिडर नहीं होता है कैजुअल इनकम में, जो कंसिडर नहीं होता है. ओके, नाउ रिसिप्ट्स फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन. मतलब कोई भी आप, इफ यू आर सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन, जो भी इनकम मिलेगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैजुअल इनकम. अगेन receipts from additional remuneration, like जैसे बोनस मिला, जो सैलरीड पर्सन है उसको अगर बोनस मिलता है, जैसे दिवाली के पहले कोई जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, और जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक ONGC, तो दिवाली के पहले ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बड़ी कंपनीज है, ये अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती है. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैजुअल इनकम. दैट इज नॉट कैजुअल इनकम. ओके, रिसिप्ट्स फ्रॉम वॉलंटरी पेमेंट. अगेन बोनस के बाद भी एक बोनस और एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है.
एडिशनल रिम्यूनरेशन में। ओके, सो कैजुअल इनकम, वो कैजुअल इनकम है, वो कैजुअल इनकम नहीं है, जैसे बोनस हो गया या तो एडिशनल जो भी रिम्यूनरेशन रहता है। ओके, रिसिप्ट्स ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, रिसिप्ट्स ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। वॉलंटरी पेमेंट मतलब किसी को किसी दूसरे को, सपोज मेरे पास कुछ एक्सेस में मेरे पास पैसे है, मेरे पास फंड है, भाई किसी मेरे फ्रेंड को दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, मैं उसको मेरे फ्रेंड को दे रहा हूँ, दैट इज नॉट ऑल्सो कैजुअल इनकम। उसका जो मैंने ऐसे ही दे दिए, उसको उधार वगैरह नहीं दिए, मैंने उसको ऐसे ही दे दिए कि तुम लेके जाओ, दैट इज ऑल्सो नॉट कैजुअल इनकम। अगेन, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट अ कैजुअल इनकम एट ऑल। गिफ्ट, ओके, गिफ्ट कितने भी बड़ी रहे, ओके, दैट इज नॉट कैजुअल इनकम। व्हाइल प्राइज, किसी कंपटीशन में आपको प्राइज मिला, ओके, एंड अवार्ड्स कैन बी ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। प्राइज किसी कंपटीशन में मिला या तो किसी स्पोर्ट्स इवेंट में मिला, ओके, दिस प्राइजेस एंड अवार्ड्स कैन बी ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। ये कैजुअल इनकम हो सकता है, ओके, प्राइजेस एंड अवार्ड्स they are treated as casual income. Okay, so we have seen that casual income is totally accidental and without any stipulation or without any expectation. Okay, some incomes could not be or will not be considered as casual income, like capital gains, again receipts from business, profession or occupation, receipts from additional remuneration like bonus, okay, receipts of voluntary payment, receipts of voluntary payment, जैसे मैंने जो फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, मैंने मेरे पास एक्सेस में 10 लाख रुपए थे, ऐसे मैंने उधार वगैरह नहीं दिए और वो फ्रेंड मुझे रिपेमेंट भी नहीं करेगा, ओके, ऐसे मैंने दे दिए, ओके। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट अ कैजुअल इनकम एट ऑल, gift, okay, but prizes and awards can be treated as casual income, okay, prize and awards, prizes and awards can be treated as casual income. So this was all about casual income. Now the last term I am repeating here, which I have taken in a previous lecture also, okay, that is total taxable income. Total taxable income is defined under section 2/45, that is section 2 subsection 45. GTI, that is gross total income, is not charged to the income tax. It is subject to various deductions under section 80 of Income Tax Act 1961, okay, and GTI, that is gross total income minus deductions under section 80, deductions under section 80, that equals to total taxable income. GTI minus, that is gross total income minus deductions under section 80, minus deductions under section 80, that is equal to or that equals to total taxable इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम मतलब जो भी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस एज पर सेक्शन 80 ऑफ द एक्ट, जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जितना भी इनकम है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम जितना भी है, मुझे सपोज मेरे सोर्सेस 3-4 सोर्सेस है इनकम के, मैं सैलरीड भी हूँ, मेरी बहुत बड़ी कोई शॉप है, वहाँ से भी मुझे इनकम आ रहा है, मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ से भी मुझे इनकम आ रहा है, ओके, तो मुझे 3-4 जगह से सोर्सेस से इनकम आ रही है। यह हो गई, उसका जो भी समेशन होगा, उसकी जो भी एडिशन होगी सभी इनकम्स की, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, एंड माइनस
डिडक्शंस अंडर सेक्शन 18, अभी डिडक्शंस में जैसे एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चरल इनकम लिया है, एग्रीकल्चरल इनकम दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। जो भी डिडक्शंस है, जो डिडक्शंस कौन से इसमें है, वी विल सी इन अपकमिंग लेक्चर। ओके, सो ये जो जितने भी डिडक्शंस है, ये डिडक्ट होने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जो जितने भी मतलब सभी सोर्सेस से मिल रहे उसके ऊपर मैं दूंगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, जो टोटल टैक्सेबल इनकम है मतलब डिडक्शंस होने के बाद उसके ऊपर मुझे चार्ज देना पड़ेगा। ओके, सो all these were for today's lecture, means we have all the definitions, we have covered up all the definitions. Here is the end of this topic. If likewise जैसे मैं रिपीट करता हूँ, जो भी आपको क्वेरी होगी, जो भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी होगी, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है। ओके, यू कुड कॉल मी और ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स एंड और से डेफिनेशंस। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।